નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન્યૂ શાંતિ સ્કૂલ મોરબી ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મારું નામ ઝાલા ભાવનાબા, સબ્જેક્ટ હિન્દી, સ્ટાન્ડર્ડ 8. આજે હું તમને ગદ્ય 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે જેમાં ભાગ 3 વિશે આજે હું તમને થોડું સમજાવીશ. પેજ નંબર 30 ઉપર પેજ નંબર 30 ઉપર આપણે જોઈએ. પ્રશ્નકર્તા છે રોહિત ચતુર્વેદી, કક્ષા 11, ઇસ્લામિયા, ઇન્ટર, કોલેજ ઇટાવા. ઇટાવાથી એક વિદ્યાર્થી 11મા ધોરણમાં છે એ વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન કરે છે कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी. શું તમે કહો છો કે 2020 સુધી આપણું રાષ્ટ્ર છે એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, પરંતુ આટલી બધી વસ્તી વધે છે અને બેરોજગારી છે, તો શું એ એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે એવું સંભવિત છે? તો ડૉક્ટર કલામ જવાબ આપે છે कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है. अचूक એટલે કે નિશ્ચિત, એટલે કે છે કે આપણા દેશનો વિકાસ છે એ જ આ જે સંખ્યા છે વધે છે એને રોકવા માટેની એક નિશ્ચિત ઔષધિ છે. इसमें जनशिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है. એમાં સૌથી વધારે જોઈએ તો સ્ત્રી શિક્ષા વિશે વધારે છે. इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है. આપણે જોવી છે કે નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ એને વધારે માન્યતા મળેલી છે. भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा. ભારત 2020નું જે મિશન છે એ આ યુવાનોને રોજગારી પૂરી પાડશે. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे. ગામડાની અંદર મોટી સંખ્યાની અંદર ઉદ્યોગો ધંધા સ્થાપિત કરવામાં આવશે, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे. જેના માટે ગામડાના લોકોએ શહેરની અંદર આવવું પડે નહીં અને એમને ત્યાં એમને રોજગારી મળતી રહે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન કરતા છે હર્ષ મહેતા, કક્ષા 12, તેજસ હાઈસ્કૂલ, બड़ौदा. બड़ौदाથી 12મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન કરે છે कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा. તમને એવું કેમ લાગે છે કે 2020 સુધી ભારત છે એ વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે? ત્યારે ડૉક્ટર કલામ જવાબ આપે છે કે ભારત की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. ભારતની આજે સંખ્યા જોઈએ તો 1 અબજ કરતાં પણ વધારે છે. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं. એની અંદર 54 કરોડ માણસો એવા છે કે જે 25 વર્ષ કરતાં નાના છે. ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है અને આ જ આપણા રાષ્ટ્રની શક્તિ છે. भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है. 2020ની અંદર આપણા રાષ્ટ્રને પરિવર્તન કરવા માટે આપણી પાસે ઘણું બધું સાધનો અને નકશાઓ પણ છે. 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्रों में परिवर्तित करने में सफल होगी. આવા 54 કરોડ યુવાનો છે એના વિચારો જ આપણા દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવશે. હવે પેજ નંબર 31 ઉપર જો પ્રશ્ન કરતા એસ કાર્તિક, કક્ષા 12, અમર જ્યોતિ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ, બેંગ્લોર. બેંગ્લોરથી એક વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન કરે છે 12મા ધોરણવાળો જ. कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते. ઘણા વિદ્યાર્થીઓનું લક્ષ્ય છે એ મોટો હોય છે, પરંતુ એમની આર્થિક પરિસ્થિતિને કારણે એને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. વે अपना લક્ષ્ય આખિર कैसे प्राप्त કરે? એવા લોકો પોતાનું લક્ષ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે? તો એના માટેનો જવાબ ડૉક્ટર કલામ આપે છે કે સ્કૂલ में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर છાત્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત હોગી. પછી કહે છે સ્કૂલની અંદર જો તમે ભણવાની અંદર હોશિયાર હોય છો તો તમને શિષ્યવૃત્તિ પણ આપવામાં આવે છે. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्र भी बनेंगे. સાથે સાથે આગળ તમારે અભ્યાસ કરવા માટે બેંક લોકો તમને લોન પણ આપતા હોય છે. जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है. જીવનની અંદર તમારે ઊંચું લક્ષ્ય જો પ્રાપ્ત કરવું હોય તો કઠિનાઈઓ તો આવતી જ હોય છે.
हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। आवा ज આપણે પરિશ્રમથી આપણા કાર્યને આપણે सफल करवानुं छे। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। आवी कठिन बाधाओथी व्यक्तिए हार मानवी जोईए नहीं। त्यार पछी प्रश्नकर्ता छे मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी कॉलेजना बीजा वर्ष में एक विद्यार्थी प्रश्न करे छे कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा माटे राजनीतिवाळानुं शुं भूमिका होवी जोईए। त्यारे डॉक्टर कलाम जवाब आपे छे कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। जे जिम्मेदार राजनीति छे ए दूरदर्शिता एटले के दूरनुं विचारवावाળી नीति बनावे छे। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। एटले के छे कि महात्मा गांधीजीए आवा सिद्धांतोनी विरुद्ध अंग्रेज सरकारनी विरुद्ध एक लड़ाई चलावी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। आ राजनीतिओए आवा खूब मेहनतथी आवा लोकोने थोड़ू मार्गदर्शन देवू जोईए। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। साथ ही गरीबी साथे जीवता 26 करोड़ भारतीयों माटे पण थोड़ू कंईक काम करवू जोईए। त्यार पछीनो प्रश्न करता छे श्री नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई थी एक विद्यार्थी कॉलेजना त्रीजा वर्ष में अभ्यास करे छे। ते प्रश्न करे छे कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। रक्षानी दृष्टि में 2020 माटे महिलाओनी शुं भूमिका छे। तो डॉक्टर कलाम जवाब आपे छे कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। 2020 में महिलाओं माटे एक विचार करवामां आव्यो छे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का विभिन्न अंग है। आ राष्ट्रीय सुरक्षा 2020 एक महत्वपूर्ण अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आव्या 2020 अंदर महिला और पुरुषों वच्चे कोईपण प्रकारनो भेदभाव कराशे नहीं। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। आ बधी सेनानी अंदर महिलाओं आगळ पड़ती होय छे। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। महिलाओं ऊंचामां ऊंचा स्तरों पर काम करीने पोतानो सहयोग दई सके छे। त्यार पछी प्रश्न करता छे जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। जोधपुरनी अंदर ज्यारे डॉक्टर कलाम जाए छे त्यारे एक बाळक प्रश्न करे छे कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते। शुं जे मेहमानो आवेला होय छे एना माटे आपणे जे खर्चाओ करता होय छे ए शुं ओछा नहीं करी सकता। त्यारे डॉक्टर कलाम जवाब आपे छे कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। ज्यारे अहींया कार्यक्रम थता होय छे त्यारे ते मोटी कुर्सी जोई हशे। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। हवे ये कुर्सी अहींया छे नहीं। ठीक ऐसे ही उत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। आवी ज रीते अनुत्पादक चीज़ों पर जे खर्चाओ थाय छे ए भविष्यनी अंदर हवे थशे नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणो पाठ पूरो थाय छे। हवे तमने समजाई गयुं हशे। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।